Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, any doubt from the previous lecture? स्टेप फंक्शन कर लिया एक तो हमने, अब नेक्स्ट हम ऑपरेशंस कर रहे हैं ना मेजरेबल फंक्शन पर. Yes, ma'am. So now just see operations on measurable functions. You are given two functions, both are measurable, both are real valued functions. Let f and g, these be real valued measurable functions defined on the common domain E, and c be any constant. Then each of the following functions are measurable on E. The first is f plus minus constant, c times f plus g, f minus g, mod of f square, f into g, and the last is f division with g, provided g vanishes nowhere on E. Vanishes nowhere on E means g is not 0 for any x belonging to E. So these are the operations which are defined on the measurable functions, and if f and g they are measurable function on a measurable set E, then all of these are measurable, right? If you add any constant, if you subtract any constant from any measurable function, the new function is again measurable function. Constant time function is again measurable function. If these two functions are measurable, then their sum, their difference, the mod, the square, the product, the division, all these are measurable functions. I think इसमें से हमने first three कर लिए थे. Yes, ma'am. मैम दोबारा करवा दो एक बार. बता देती हूँ आपको. Now just see the proof of the first one. First क्या है? f plus minus constant. अगर आपको इसको show करना है, this is measurable, what we need to show, the set E f plus minus c greater than alpha for any real number alpha. ये जो सेट है ये मेजरेबल आना चाहिए. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन. किसी फंक्शन को आप मेजरेबल कहोगे इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इनमें से कोई भी एक सेट अगर आपका मेजरेबल आ जाता है तो आप इस फंक्शन को मेजरेबल कहोगे, राइट? गिवन हमें इसमें क्या है कि फंक्शन एफ मेजरेबल है, यानी ये वाले जो सेट्स हैं दे ऑल आर मेजरेबल फॉर एनी रियल अल्फा. ओके, we want to show that this set is measurable. ये set कौन सा set है? It is the set of all those x belonging to the domain where the value of the function, this function is greater than alpha, right? ये जो आपके पास set आ रहा है, this set is measurable. ये आपने show करना है. Now we can write this as all those x belonging to E. We can write this alpha. अगर इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा. You can write this. You Yes, can take this plus minus c to this side. ये लिख सकते हो आप. yes, ma'am. Now just see if alpha is any real number, then alpha minus c or alpha plus c, where c is any constant, this is also any real number. ये भी एक Yes, you can call this as alpha dash. And what about this set? Is it measurable?
Yes, ma'am. Measurable. Why this is measurable? Because it is given to us that f is measurable function. So for any real number alpha, ये जो set आएगा, that is also measurable. So if this is measurable, these two are same. It means this is measurable. Means this is measurable. So the function f plus minus c, this is measurable function. This point is clear, Yes, ma'am. and this is so because f given है हमें, f is measurable function. Similarly, the proof of second part, c times f. We want to show this. So we get different cases. If your c is 0, then this implies c times f is also 0. So you get a null function which is a constant function, and we know that हमने show किया every constant function is measurable. So directly आपका यहाँ से आ गया, if your c is 0, then c times f is always measurable. This point is clear? Yes, ma'am. Now we assume that c is non-zero. Then we have two cases, either c is strictly greater than 0 or c is less than 0. If your c is greater than 0, then what is this set? What is this set? This set will be all those x belonging to E where, sorry, c times, where c times f is greater than alpha. We can write this as all those x belonging to E where, since your c is a positive number and strictly greater than 0, so we can divide by this number and inequality remains same because this is positive. Sign change नहीं होगा आपका, ये inequality change नहीं होगी. So you can divide by this c because your c is strictly greater than 0. Call this as some new alpha. Again, you are having the set all those x belonging to E where the value of the function is greater than alpha dash, where alpha dash is any real number. And this is given to you that the function is measurable. So this implies that this set is measurable, which is same as that this set. So this implies this set is measurable. This point is clear? So Yes, c ma'am. times f is measurable function provided c is strictly greater than 0. The same way, have you noted down? Yes, ma'am. Now the next is when your c is strictly less than 0. Then e c times f greater than alpha is a set of all those x belonging to E where the value of c times f is greater than alpha. Now since your c is strictly less than 0, it's a non-zero number but negative. So when you divide by c, the inequality changes. You get this thing. Now you can call this as some alpha dash. This is also a real number. And we know that whenever our function is a measurable function, for any real number alpha, this set is also measurable. So which implies this is measurable. This is same as that this, same as that this, therefore this is measurable. So whatever the value of c, whether it is 0, negative, positive, in every cases, we have the function c times f is measurable function provided f is measurable function. Clear? So what we get, c times f is measurable function for any constant c. Clear है यहाँ तक? Yes, ma'am. Now see the third part. The sum of two measurable function is again measurable. We want to show this thing. Means we want to show E f plus g greater than alpha. This set is measurable. It's a set of all those x belonging to the domain E such that
f plus g is greater than alpha. We can write this as all those f greater than alpha minus g. Now we can consider this as a new function. Since हमने ये प्रूव कर दिया है कि c times f and f plus c or f minus c, all these are measurable functions provided f is measurable. So if your g is measurable function, and in particular if we choose c to be minus 1, then by above part c into g is also measurable, which implies minus g is measurable. This point is clear? Given that g is measurable, and by above part c times g is also measurable, and in particular we can choose c to be minus 1, so we get minus times g is measurable. This point is clear? Is it clear? Yes, any Yes. doubt in this step? No, no. कोई डाउट है बच्चे इसमें? g मेजरेबल हमें गिवन है, अभी हम ऊपर प्रूव करके आ रहे हैं व्हेनेवर कोई फंक्शन मेजरेबल होता है तो c टाइम्स भी वो मेजरेबल होगा. So c is any constant, any arbitrary constant. We can put c to be minus 1 also. This is also a constant. So minus times g is also measurable. This point is clear? Yes, ma'am. Similarly, हमने पार्ट 1 में प्रूव किया है कि अगर g फंक्शन मेजरेबल होगा तो उसमें आप कोई भी ऐड करो कांस्टेंट या सब्ट्रैक्ट करो, all these are measurable. So we can choose this constant to be alpha. माइनस g measurable है, माइनस g में we can add alpha. तो ये जो एक नया फंक्शन हमें मिला, this is also measurable. By part 1, since minus g is measurable, तो उसमें कुछ constant add करोगे, वो भी आपका measurable रहेगा. तो ये जो नया फंक्शन आपके पास आ रहा है, this is also measurable. This f is measurable. तो आपने ये प्रूफ किया था कि a set where these two functions are measurable, then a set containing the points from the domain, one function greater than other function where both these are measurable, ये set भी again measurable आएगा. ये आपने शो किया था by considering the rational number. We know that between two numbers there lie infinitely many rationals, so we can write this in the terms of rational. And we can separate these two, and last में we can take the union of all these ARs over the rationals. We get each set is measurable, therefore this A is measurable. So using that result, we can say that this set is measurable set. Now since this is measurable set, means this is measurable, means f plus g is a measurable function. This point is clear? Clear hai Yes, bachche? ma'am. So using this concept, we get f plus, if two functions are measurable, then their sum is also measurable on the common domain E. Similarly, we can show the fourth part, that f minus g, because we can write f minus g2 as this. G, if g is measurable, then minus times g is also measurable. And if f is measurable, minus g is measurable, the sum of two measurable is again measurable. So we can use second property as well as the third property, and we get this fourth one. Clear hai? Yes, ma'am. Now the fifth property kya hai? Mod of f, yes, mod of f then f square.
Now mod of f, what we want to show that the set E mod of f greater than alpha. We want to show this set is measurable. This is a set of all those x belonging to E such that mod of f is greater than alpha. Now we can write this set as, depending on alpha, if your alpha is negative, strictly less than 0, then mod, we know that mod is always positive. अगर आपका अल्फा नेगेटिव है और हमें पता है मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो जाएगी. मॉड ऑफ एफ किसी भी नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा. दिस पॉइंट इज क्लियर. Yes, ma'am. So if your alpha is negative, then this is always true. It means it is true for every point of the domain. It means this set is nothing but the E set. क्योंकि हर एक x के लिए mod of f ने ग्रेटर हो जाना है अल्फा से whenever your alpha is negative. It means ये वाला सेट के मेंबर्स क्या आएंगे, the whole set E. क्लियर है ये पॉइंट. Yes, ma'am. And if your alpha is greater than equals to 0, then देखो इन सेट में कौन से पॉइंट्स आएंगे आपके पास. या तो आपके पास f पॉजिटिव होगा या आपके पास f नेगेटिव होगा. इन ईच केस mod of f तो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव. Right? What we want to find those points of the domain where mod of f is greater than alpha. अब अल्फा क्योंकि मेरा पॉजिटिव है और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही आना है, राइट. बट वी नो या तो f ने पॉजिटिव होना है या f ने नेगेटिव होना है. अगर मान लो f पॉजिटिव होता, फिर तो आप mod of f को भी f से रिप्लेस कर सकते हो और यू गेट दिस पॉइंट, ये सेट आ जाएगा. और अगर f नेगेटिव होता तो माइनस mod of f ने तो हमें प्लस f ही देना है. बट आपके पास कंडीशन क्या बनी, बिकॉज अल्फा इज, तो कौन से पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेंगे, वेयर माइनस ऑफ एफ इज ग्रेटर देन अल्फा मींस एफ इज लेस देन माइनस अल्फा, राइट. सो वी विल गेट दोस पॉइंट्स फ्रॉम द डोमेन वेयर आइदर एफ इज ग्रेटर देन अल्फा और एफ इज लेस देन माइनस ऑफ अल्फा. अगर एफ लेस देन होता है माइनस अल्फा से, तो मॉड लेने पर एफ ग्रेटर बन जाएगा अल्फा से. दिस पॉइंट इज क्लियर. तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट डोमेन का इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी इसमें होल्ड हो जाएगा. सो यू गेट ऑल दोज x belonging to E where f is greater than alpha union with all those x belonging to E where f is less than minus alpha. This point is clear. Whenever your alpha is greater than equal to 0. Yes, ma'am. जो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ. लेट्स सपोज कि मेरा अल्फा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. मान लो मैंने अल्फा को 1 चूज किया है, ठीक है. अब फंक्शन जो है वो मेरे पास ये है, एक बार मान लो इसकी वैल्यू है 5, एक बार है -5. x बिलोंग्स टू रैशनल्स पे ये है और x बिलोंग्स टू इरेशनल्स पे लेट्स सपोज ये है, राइट. सो वी वांट टू फाइंड आउट दोस पॉइंट ऑफ द डोमेन where f is greater than alpha, mod of f is greater than alpha. Now just see, if your x belongs to rational, then fx की वैल्यू है आपके पास 5 एंड क्लियरली ये आपकी 1 से बड़ी है. ये पॉइंट क्लियर है. When your x is belonging to the rationals, the value of the function is 5 which is strictly greater than 1, right. तो इसका मतलब rationals तो सारे आ जाएंगे, यानी ये वाला सेट आ जाएगा, all those x belonging to E where f is greater than alpha. ये पॉइंट्स आ गए. Yes, ma'am. अब देखो
अगर x आपका इरेशनल है तो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -5. ओके, एंड योर अल्फा इज 1. तो आप जब इनका मॉड लोगे अगेन ये आपका ग्रेटर देन 1 ही होगा. तो इरेशनल वाले पॉइंट्स भी आपके आने चाहिए, राइट? तो यहां से मेरे पास कंडीशन क्या बनती है कि -5 आपका ग्रेटर है 1 से, इट मीन्स 5 आपका लेस है -1 से. ये कंडीशन आपके पास बनती है. ओके, तो वेन एवर यूर -5 इज लेस देन -1, वेन एवर ये चीज आपके पास होल्ड होगी तो आप कहोगे कि आपका फंक्शन जो है वो सारे पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, ऑल दोज x बिलोंगिंग टू e वेयर f इज लेस देन माइनस अल्फा. और अनदर वे आप देखो क्या कह सकते हो, इफ योर मॉड ऑफ f इज ग्रेटर देन हम अल्फा. 5 लेस देन -1 होगा या -5 लेस देन -1? -5 लेस देन -1. 5 greater than 1 means अब -5 -5 ग्रेटर देन minus 1 less than 1 -1. यहाँ से एक्चुअली 5 greater than 1 मिला ना हमें, मॉड ऑफ से 5 Yes, ma'am. बाहर आया, 5 Okay, greater ma'am. than 1 है, और यू कैन से -5 इज लेस देन -1. एक ही बात है, अगर हम Okay, दोनों ma'am. तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगी. तो आपको ये कंडीशन मिलेगी -5 इज लेस देन -1. सो यू गेट ऑल दोज, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं आपकी, लेस देन माइनस अल्फा, वो भी आपकी इस कंडीशन को ट्रू कर देंगी. तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स भी आपके पास आ जाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? और अनदर वे देखो, मॉड ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा है, इट मीन्स क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एफ ग्रेटर देन अल्फा है या -f ग्रेटर देन अल्फा है ना. एफ ग्रेटर देन अल्फा है तो ओके है, -f में क्या हो गया, एफ लेस देन -अल्फा. तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास अकर करेंगी. So we consider all those points from the domain where the value of function is greater than alpha, or all those points from the domain where the function is less than -alpha. So और है, either ये points भी आ सकते हैं, ये points भी, इसलिए we take the union. Now this point is clear? ये point clear है बच्चे? Yes, ma'am. So whenever your alpha is positive, मॉड ऑफ एफ में चाहे फंक्शन आपका पॉजिटिव है चाहे आपके पास नेगेटिव है, वो सारे पॉइंट्स आने चाहिए सच दैट दिस कंडीशन होल्ड. तो अगर आपका फंक्शन नेगेटिव होता है तो उसमें भी आपको ये चीज चाहिए, मीन्स आपका एफ लेस हो गया -अल्फा से, राइट? तो इसलिए ऑल दोस पॉइंट डोमेन के मिल जाएंगे वेयर द एफ इज लेस देन अल्फा. सो वी गेट आइदर ई सेट if your alpha is negative, and if your alpha is positive, we get these two sets. But though both these sets are measurable. Now why these sets are measurable? Because your f is measurable function. If f is measurable function, then all those x belonging to e f greater than alpha भी आपका measurable set होगा. All those x belonging to e f less than minus alpha, अगर अल्फा कोई रियल नंबर है तो माइनस अल्फा भी रियल होगा, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेट measurable. And when these two sets are measurable, their union is also measurable. So we get this set is measurable, this is measurable, this is measurable. This implies that this is measurable. This point is clear? Clear है बच्चे ये point? Yes, ma'am. अच्छा, मान लो कि ये मेरे पास -5 की बजाय छोटा ले लो आप, ये आपके अल्फा आपके पास 4 है और ये मान लो -2 है. अब देखो कि क्या ये वाले रैशनल पॉइंट्स आपके पास आएंगे इस सेट में, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं क्या? इफ योर एक्स इज इरेशनल, देन क्या आपका मॉड ऑफ एफ ग्रेटर देन 4 है? यस. मॉड ऑफ एफ आपके पास क्या आया, 2. क्या 2 ग्रेटर देन 4 है?
if your x is irrational, now at this time the value of the function is -2, is -2 is greater than अल्फा, अल्फा से बड़ा आ रहा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है ना, is 2 is greater than 4, क्या ये ट्रू है? नो मैम। नहीं है ना ट्रू। अब आप इस कंडीशन से देखो, यहां से भी आपको यही मिलेगा। यू वांट टू फाइंड ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू ई वेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लेस देन माइनस अल्फा। एफ है आपके पास -2 और अल्फा है आपके पास -4, क्या ये कंडीशन ट्रू है? -2 इज लेस देन -4, और यू कैन से दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, 2 ग्रेटर देन 4, इज इट ट्रू? नो। तो इस बार इस डोमेन सेट एम्प्टी आ जाएगा, तो you left only this set, right? So in each case if your alpha is greater than equal to 0, then mod of f में दो possibilities बनेंगी। अगर तो f पॉजिटिव है तो ये वाले पॉइंट्स आएंगे, अगर f नेगेटिव है तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, बिकॉज अल्फा ने तो चेंज नहीं होना, अल्फा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइन ने कैंसिल आउट नहीं होना, इसलिए ही आपका साइन इधर चला गया और माइनस अल्फा बचा, राइट? सो वंस अगेन सी क्या आपके पास आया, you want to show that all those x belonging to E such that your mod of f is greater than alpha. This will be the set. If your alpha is negative, then this is always true, so you get the whole set. And if your alpha is greater than equal to 0, then this is the set greater than alpha, or the union with the set less than minus alpha. Now since this is measurable, this is measurable, union of two measurable is measurable, this is measurable, so on the right hand side every set is measurable, so this implies this set is measurable. So this implies that mod of f is a measurable function. What can be said about the converse? Yes, converse के लिए क्या कह सकते हो आप? If mod of f is measurable function, क्या ये imply करेगा always f भी measurable function है? नो मैम। Can you give any example for the contradiction? मैम वो -2 और -4 वाला जो केस आया था कौन से वाला बच्चे? मैम, इससे पहले एक -2 -4 वाला केस आ गया था ना। -2 -4 ये वाला? यस मैम। हाँ तो ये तो एम्प्टी सेट बनेगा, एम्प्टी सेट तो मेजरेबल है। एग्जाम्पल आप दोगे जो हमने एक पहले दिया था, हमने एक p नॉन मेजरेबल सेट कहा था 0 1 में। सो हम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे कि दिस इज p, दिस इज 1 या कुछ भी आप कह लो, व्हेन यूर x बिलोंगिंग टू p, x डज नॉट बिलोंग टू p, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट है -1 लेट्स सपोज, तो ये जो आपके पास आएगा फंक्शन, ये नॉन मेजरेबल फंक्शन है बिकॉज ये p आपके पास नॉन मेजरेबल है। बट व्हेन यू कंसिडर mod of f लेने पर आपके पास फंक्शन ने 1 ही बन जाना है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू e, where e is the closed interval 0 1. And since this set is measurable, तो ये कांस्टेंट फंक्शन 1 ही बन गया, ये भी क्या है? मेजरेबल। However f is not measurable, ये मेजरेबल नहीं है, बिकॉज अगर आपका अल्फा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हुआ, राइट, या ग्रेटर देन आपके पास 1 है, तो ऑलवेज आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, यानी p आ जाएगा सेट, p आ गया तो p नॉन मेजरेबल सेट आपने कंसीडर किया है। ओके, सो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। If your mod of f is measurable function, it does not always implies that your f is measurable function, right? So you can write down as a remark over here that converse of above, जो भी point है, 4th point है या 5th, whatever, this need not be true. 5th है कि 4th है बच्चे? 5th point.
So the converse of above fifth point need not be true. Means if mod of f is measurable function, f need not be measurable. Clear है? This point is clear? Yes, ma'am. जबकि ये ऑलवेज होल्ड होगा, जब भी आपका f मेजरेबल फंक्शन है मॉड ऑफ f हमेशा मेजरेबल होगा, ये हमने प्रूव किया अभी, राइट? बट कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है. यू कैन गिव दिस एग्जांपल, प्रॉपरली लिख लो आप इसको. लेट p बी एनी नॉन मेजरेबल सेट in this interval. Now we can define a function f going from e to set of real numbers by 1 minus 1 when your x belongs to p, when your x does not belongs to p. Then clearly this function is non-measurable function. Why this is non-measurable? Because if you choose e f greater than alpha, ये सेट अगर आप देखते हो, या लेस देन अल्फा, वट एवर, जोन सी मर्जी आप एक इनइक्वालिटी शो कर लो, लेट्स सपोज ग्रेटर देख रहे हैं हम, अगर आपका अल्फा नेगेटिव है तो आपके पास ऑलवेज पी सेट बनेगा. If your alpha, you want to find out those point of the domain which are greater than alpha, right? तो अगर आपका अल्फा -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, नेगेटिव है, तो आपका फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा हो, उसके लिए क्या आपको मिलेगा? पी सेट मिलेगा, बिकॉज पी पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव ने हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा रहना है, तो ये सेट आएगा आपके पास. दिस पॉइंट इज क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? We want to find out those point of the domain where the value of the function is greater than alpha. अल्फा मैंने नेगेटिव नंबर चूज किया है, तो we know that this one is always greater than any negative number. So you get this set should be p. p आना चाहिए सेट को, Yes, ma'am. राइट? इसी तरह अलग अलग अल्फा पे कंडीशंस लोगे और बन जाएंगे, बट p आपके पास नॉन मेजरेबल है, तो क्लियरली f भी नॉन मेजरेबल आ गया. However, if you take mod of f, अगर आप mod of f कंसीडर करते हो तो ये 1 ही आ जाता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन. डोमेन है आपके पास इंटरवल 0 to 1. क्लियरली दिस इज मेजर एंड दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, सो दिस इज मेजरेबल. क्लियर है? So mod of f is measurable, however f is not measurable. Right? Now see the next part. 6th part में आपको शो करना है f square. मैम हाँ जी बच्चे. एक बार प्रीवियस पेज दिखाना. मैम इसमें सिर्फ इतना लिखे हैं तो काम नहीं चल जाए कि जो जो आपने फंक्शन डिफाइन किया कि x जब p से बिलोंग करेगा तब 1 है हमारा, और p से बिलोंग नहीं कर रहा तो -1 है, तो p हमने नॉन मेजरेबल सेट लिया था, हम्म. तो यहाँ से आपने ये लिखा कि f भी नॉन मेजरेबल फंक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारा p नो, फिर ये वाली लिखने की क्या ज़रूरत है? ये जो आपने अगला पोर्शन दिखाया कि हमने जो f ग्रेटर देन अल्फा वाला लिया. Means this one. यस मैम, ये जो निकाल रहे हैं. मैं ये तो आपकी अल्फा पे कैसे करते हो, आप किसी फंक्शन को आपने चेक करना है दैट इज मेजरेबल और नॉट, तो आइदर यू चेक दिस सेट और लेस देन अल्फा और ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा और लेस देन इक्वल टू अल्फा, इनमें से कोई भी एक हमने चेक करना है. यस मैम.
राइट। तो मान लो मैंने पहले वाला ये मैम वाला सेट इससे लिया है, ऊपर ही बता रहे हैं ना, इससे ऊपर ही बता दिया हमने कि वो तो नॉन मेजरेबल फंक्शन हो गया। नो नो, ये तो फंक्शन डिफाइन की है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका डोमेन ई पे। वो तो डोमेन हमने ये डोमेन की बात की है कि पी जो है वो नॉन मेजरेबल सेट है, फंक्शन की बात थोड़ा की है यहाँ पर। ओके मैम। ऐसे देखने से थोड़ा पता चल रहा है आपको कि ये फंक्शन जो है वो नॉन मेजरेबल है, ऐसे तो ये कांस्टेंट फंक्शंस हैं। यस मैम, आ गया। ये हमें चेक करके बताना पड़ेगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पी नॉन मेजरेबल है। ये सेट बने, ये पॉइंट्स बने, इनमें एक सेट पी भी आ रहा है, और पी हमने नॉन मेजरेबल लिया, एंड वी नो दैट कि ऑलवेज जब भी आपका मेजर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा उसमें एक नॉन मेजरेबल सेट आएगा ही आएगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। यस उस सेट को हमने पी मान लिया है जो एक नॉन मेजरेबल था। यहाँ पर नॉन मेजरेबल सेट है, यहाँ पे हमने फंक्शन को देखना है, फंक्शन ये डिफाइन ऐसे हो रहा है। अब मुझे इस फंक्शन को चेक करना है कि ये मेजरेबल है कि नहीं, इसलिए ये वाला सेट हमने पिक किया। अगर ये सेट मेरे पास मेजरेबल आ गया तो मेरा ये फंक्शन मेजरेबल होगा। यस मैम, और इसका एक जो हाँ, वो है वो उसमें नॉन मैंने एक मेजरेबल है। कंडीशन लेते ही बताया आपको कि ये देखो ये पी बन गया सेट। यस मैम। अब पी जो है वो नॉन मेजरेबल है, अब इसमें और मेजरेबल भी आ जाएं सेट्स, बट ये सारे के सारे तो मेजरेबल नहीं है, तो हाँ, क्लियरली तो ये वाला सेट फंक्शन नॉन मेजरेबल नहीं होगा, मेजरेबल हो जाएगा। ओके राइट। और अगर ये मेजरेबल नहीं है इट मींस योर एफ इज नॉट मेजरेबल। ओके। ओके मैम। हाउएवर जैसे ही आप मॉड ऑफ एफ लेते हो तो वो एक कांस्टेंट वन, ओनली वन बन जाता है। इसको भी इवन आप चेक करके देख सकते हो आगे। आप मॉड ऑफ एफ ग्रेटर देन अल्फा ये चेक करना है आपने। तो ये देखो सेट क्या कौन से बनेंगे, अगर तो आपका अल्फा लेस देन वन है, स्ट्रिक्टली लेस देन वन है, तो बताओ कौन से पॉइंट्स आएंगे डोमेन के। अगर ये वन से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू तो वन है फॉर एवरी एक्स, तो ई इटसेल्फ आ गया। यस मैम। एंड इफ योर अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन, तो कोई पॉइंट नहीं आएगा, डोमेन का एम्प्टी सेट आ गया जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो दोनों मेजरेबल अब है, ये तो दोनों मेजरेबल हैं, इसलिए ये वाला मेजरेबल आ गया, ओके राइट। मॉड ऑफ एफ मेजरेबल है, हाउएवर एफ इज नॉट मेजरेबल, क्योंकि अल्फा पे कंडीशन लेने पर एक बार ये सेट पी भी बन रहा है और पी नॉन मेजरेबल है। आ गया ओके, यस मैम। नाउ द नेक्स्ट इज एफ स्क्वायर, ये शो करना है आपने। सो ई f square greater than alpha, we want to show that this set is measurable. It's a set of all those x belonging to E where the value of the function square is greater than alpha. So we can write this as all those x belonging to E. अब देखो अल्फा पे कंडीशंस ले लेते हैं। मान लो मैंने अल्फा नेगेटिव लिया, again we know that f square is always positive, चाहे f नेगेटिव होता तो भी स्क्वायर करने पे उसने हमेशा पॉजिटिव रहना है, राइट। तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम नेगेटिव नंबर, तो ये ट्रू हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ई। इसका मतलब है पूरा सेट ई आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर। Yes, ma'am. एंड इफ योर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर अल्फा आपका पॉजिटिव होगा तो देखो ये कौन सा सेट बना, दिस सेट विल बिकम दोज पॉइंट ऑफ द डोमेन वेयर मॉड ऑफ एफ इज बेसिकली ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, ये सेट बन जाएगा। ये ना आपको चाहिए ऑल दोज ई एक्स बिलोंगिंग टू ई वेयर एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा। अल्फा पे अब कंडीशन ये है कि ये पॉजिटिव है, तो नाउ आई कैन टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेने पे मुझे नहीं पता एफ पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये मॉड एफ में कन्वर्ट होगा, राइट। ये हमेशा पॉजिटिव है तो इधर मॉड लेने की जरूरत नहीं, इधर बना स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, right? So these two sets are same whenever your alpha is greater than equals to 0. Okay, so if your alpha is greater than equal to 0, we get all those x belonging to E where mod of f is greater than root of alpha.
This point is clear? Yes, ma'am. Now अभी हमने फिफ्थ पार्ट में शो किया है कि if your f is measurable then mod of f भी measurable होगा. तो if you can put this to be some another alpha dash which is a real number, and since f is measurable, mod of f is also measurable, so this set is measurable. E domain set is measurable, both these are measurable, implies f square is measurable function. अगेन इसमें आप रिमार्क कर सकते हो, वही प्रीवियस एग्जांपल ही आपका यूज आ जाएगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. राइट, प्रीवियस एग्जांपल में ही स्क्वायर करने पे अगेन इसने 1 ही बनना है. f आपका मेजरेबल नहीं है, हाउएवर f स्क्वायर इज मेजरेबल. राइट, अगर f मेजरेबल होता तो 100% f स्क्वायर भी मेजरेबल था, बट अगर f स्क्वायर मेजरेबल है देन वी कांट से एनीथिंग अबाउट द फंक्शन f. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. अगर f स्क्वायर मेजरेबल फंक्शन है then we cannot say anything about the function f, whether the function f is measurable or not. Right? However, अगर f cube odd parts f5 अगर ये मेजरेबल फंक्शन होते तो ये इंप्लाई करने थे कि f भी मेजरेबल है. मतलब odd parts में both ways ये चीज ट्रू होगी. f इंप्लाई करेगा f क्यूब मेजरेबल होगा, f5 मेजरेबल होगा, all the odd parts are measurable. Similarly, if these are measurable functions, then ये back भी इंप्लाई करेगा कि f भी मेजरेबल फंक्शन है. This point is clear? इवन के लिए ट्रू नहीं है ये, मॉड लेने पे ट्रू नहीं है, बट ऑड पार्ट्स में ऑलवेज ट्रू हो जाएगी ये चीज, बैक भी आपकी जो है वो ट्रू होगी. एंड यू कैन शो दिस थिंग, सेट को आप शो करके दिखा सकते हो, क्योंकि ये आपके पास आइसोमॉर्फिक फंक्शंस बन जाएंगे. f और f क्यूब का बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा, स्क्वायर करने पे बिहेवियर चेंज हो जाता है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, बट अगर क्यूब होता तो -1 था तो -1 ही रहना था, सेम बिहेवियर. सो इसलिए अगर f मेजरेबल है then all the odd parts are also measurable, and if all the odd parts of the function are measurable then back also true, means function is also measurable. This point is clear? मैम मतलब सारी ऑड पार्ट्स मेजरेबल होनी चाहिए? नहीं, मतलब इनमें से कोई भी एक पिक किया, मान लो f5 हमें गिवन है मेजरेबल है, तो f5 इंप्लाई कर देगा f भी मेजरेबल है. ओके मैम. वो तो ऑब्वियस है कि अगर f5 मेजरेबल है तो f7 भी मेजरेबल होगा, क्योंकि ये आपस में तो एक दूसरे को इंप्लाई करते ही जा रहे हैं. मतलब whenever f is measurable तो f square भी है, f cube भी है, f4 भी है, f5 भी है, all are measurable. बैक किस में ट्रू होगा? ऑड पार्ट्स में. ओके, क्योंकि आप देखो ना, अगर f मेजरेबल है तो हमने अभी शो किया f स्क्वायर भी मेजरेबल होगा. अब इसको एक मेजरेबल फंक्शन मान लो, ठीक है, अगर ये मेजरेबल है तो इसका स्क्वायर भी मेजरेबल होगा, तो f की पावर 4 मेजरेबल आ गई. और अभी हम 7th में करने लगे हैं कि अगर f मेजरेबल है, g मेजरेबल है, तो उनका प्रोडक्ट भी मेजरेबल होगा. तो अगर f स्क्वायर मेजरेबल है, मींस अगर f मेजरेबल है तो ये इंप्लाई कर रहा है f स्क्वायर मेजरेबल है. अब f भी मेजरेबल हो गया, f स्क्वायर भी मेजरेबल हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी मेजरेबल होगा, यानी f क्यूब भी मेजरेबल आ गया. तो जब भी f मेजरेबल है उसने तो ऑलवेज इंप्लाई कर देना है एवरी पॉजिटिव पावर ऑफ द फंक्शन इज मेजरेबल इफ f इज मेजरेबल, राइट. बट कन्वर्स में ओनली ऑड पार्ट्स के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ऑड पार्ट्स वालों का बिहेवियर सेम होगा फंक्शंस में. ओके, क्लियर है बच्चे? सो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरेबल फंक्शन इज अगेन मेजरेबल. द 7th वन, if f is measurable, g is measurable, then their product is also measurable.
So we want to show this thing. Now just see f into g, this can be written as f plus g whole square minus f minus g whole square डिवाइड बाय 4, ये लिख सकते हो. f into g को ये लिख सकते हो आप लोग. Yes, ma'am. You can open this side, you get f square plus g square plus 2fg minus f square minus g square plus 2fg. Oh, sorry. So this is 4fg divided by 4, so this is fg. Right? So you can write f into g as this one. अब अपनी जितनी प्रॉपर्टीज की हैं सबको यूज कर लो. हमने किया है अगर f मेजरेबल है, g मेजरेबल है, तो उनका सम भी मेजरेबल होगा, उनका डिफरेंस भी मेजरेबल होगा, इनका स्क्वायर भी मेजरेबल होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी मेजरेबल होगा, एंड कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन भी मेजरेबल होगा. सारी प्रॉपर्टीज यूज की प्रीवियस जितनी अभी हम करके आए हैं, तो हमारे पास आ गया द प्रोडक्ट इज आल्सो मेजरेबल. दिस पॉइंट इज क्लियर. क्लियर है ये. f measurable, g measurable, then their sum, their difference, their squares, their difference, and the constant multiplication, all these are measurable. So we get this is measurable, and this is equal to fg, so it means this is measurable. Clear hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the last one, the division. But provided g never vanishes on e, ये 0 नो 0 होना चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते हो. किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए डोमेन के. So what we want to show, we want to show this is measurable. तो इसके लिए हम शो करेंगे कि अगर g measurable है तो 1 by g भी measurable है, ये शो करेंगे हम. If g is measurable, then this implies 1 by g is also, provided g is non-zero for all x from the domain. Right? जैसे ये सेट आ जाएगा आपके पास measurable है, तो by 7th, if your f is measurable, 1 by g is measurable, then their product is also measurable. So we get this is measurable. Okay? So इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इस सेट को शो करना, that this set is measurable. So what we want to show, we want to show this thing, कि ये जो सेट है ये आपके पास आना चाहिए measurable. क्लियर है ये पॉइंट. नाउ जस्ट सी, अगर आपका अल्फा एग्जैक्टली 0 होता, देन कौन से पॉइंट्स आएंगे आपके डोमेन के जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे. Yes, it will be that points where g is strictly greater than 0. जहां पर g ने ही strictly greater than हो जाना है 0 को, 1 by g क्लियरली आपका 0 से बड़ा हो जाएगा. Yes, ma'am. So whenever your alpha is 0, it is those point of the domain where g is greater than 0. Okay. Case second, if your alpha is strictly greater than 0, अगर अल्फा आपका strictly greater than 0 है, तो बताओ कौन से पॉइंट्स आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे. Ma'am, g greater than 1 by alpha. This implies g greater than 1 by alpha. बट अगर g नेगेटिव होता, Ma'am, inequality change कर देंगे. इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो g विल बी लेस देन -1 ओवर अल्फा, और अल्फा तो आपका पॉजिटिव है, तो यही कंडीशन बनेगी. सो इट विल बी दोज पॉइंट ऑफ द डोमेन, पहली बात जहां पर g ग्रेटर देन 0 है, g पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको ये 1 बाय g ने ग्रेटर देन अल्फा बनना है, बिकॉज अल्फा आपका पॉजिटिव है.
we need those point of the domain where your 1 by g is greater than अल्फा. अब अल्फा पे कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, सॉरी. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी आपके वही पॉइंट सेटिस्फाई कर सकते हैं जो कि ग्रेटर हैं 0 से. अगर नेगेटिव है फिर तो ये कभी ग्रेटर देन 0 आएगा ही नहीं. नेगेटिव वाले तो सॉरी इसमें आने ही नहीं है. ओके, 1 बाय जी अदरवाइज नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव कभी भी आपका अल्फा से बड़ा नहीं होगा बिकॉज अल्फा आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, राइट. सो कंडीशन क्या बनेगी, ऑल दोज एक्स बिलोंगिंग टू ई वेयर जी इज ग्रेटर देन 0 एंड जी इज लेस देन, जी आपका है अगर 1 बाय जी ग्रेटर देन अल्फा है तो जी आपका लेस हो गया 1 बाय अल्फा से, एंड योर जी इज लेस देन 1 बाय अल्फा. ये चीज ट्रू होगी. मैम जी ग्रेटर देन 1 बाय अल्फा है ना? लेस देन मैम आपका 1 बाय जी ग्रेटर देन अल्फा 1 ले बाय रहे हैं, जी जी ग्रेटर देन, पॉजिटिव ले रहे हाँ. हैं, तो इनइक्वालिटी. अच्छा हाँ ठीक नहीं है. आप इसको इधर लेके ना, yes, प्रोडक्ट है. yes. तो जी, सो वी नीड दोज पॉइंट ऑफ द डोमेन वेयर जी इज पॉजिटिव एज वेल एज जी इज लेस देन 1 बाय अल्फा. उनको वो वाले पॉइंट्स मिलेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए. सो सिंस दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, सो वी टेक इंटरसेक्शन. सिमिलरली इफ योर अल्फा इज नेगेटिव, अगर अल्फा नेगेटिव है, अब अगर अल्फा नेगेटिव है तो जिन जिन पॉइंट पर जी पॉजिटिव है वो तो हमेशा ही आपका ग्रेटर होगा.